بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بڑا جنگجو، ہر میدان میں اترنے والا شہسوار بخوبی جانتا ہے کہ جب سلطنتیں قائم ہوتی ہیں تو خون بہایا جاتا ہے، اور خون کے بدلے خون بہنے کے لیے جنگجوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان جنگجوؤں کے سینے میں ایک مضبوط دل و دماغ، ایک بہترین عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دنیا کے بہترین اور سخی چلاک عقل مند دور اندیش جنگجوؤں کا ذکر کیا جائے تو اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جیسے بہادر، عقل مند، دور اندیش اور سخاوت دنیا کے حکمرانوں میں سے صفِ اول اور چوٹی کے فاتح حکمران اور جنگجو تھے۔ سلطان کا ثانی اس کرۂ ارض پر موجود نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جنگجو، ہر حکمران سے مختلف وقتوں پر مختلف کام لینے ہوتے ہیں، اور جہاں سخاوت کا ذکر آئے وہاں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلچسپ اور بے شمار منفرد واقعات ملتے ہیں، جن کو سن کر ہماری روح کو سکون اور دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دوستو، ہم اب یہاں پر ایک ایسے واقعہ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی عقل مندی، دور اندیشی اور سخاوت کو ظاہر کرتا ہے، سننے لگے ہیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا سلطان کا واحد عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کھوجیوں کی طرف سے ایک خبر ملی کہ حضور، مصر کے مغربی طرف پہاڑوں کے قریب گھنا جنگل ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس گھنے جنگل میں بہت بڑا گڑھا ہے، اور اس گڑھے میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر خزانہ ہمیں مل جائے تو مسلمانوں کی معاشی مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنا دفاعی نظام مزید ناقابل تسخیر بنا سکتے ہیں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج تک جو بھی جنگجو، جو بھی بادشاہ، جو بھی سپاہی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ واپس زندہ نہیں لوٹے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس خزانے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے آج تک اس کی کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ اس خزانے کا حجم کتنا، تو کھوجیوں نے کہا کہ ہمیں خزانے کے حجم کا بالکل صحیح معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر وہ خزانہ آپ مصر کے تمام غریبوں میں بھی بانٹ دیں گے نا تو بھی خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا ہی خوش ہوا اور کہا کہ اب مصر کا کوئی بھی بندہ غریب نہیں رہے گا، اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کیا جائے گا، خاص کر یتیموں اور مسکینوں کے لیے لنگر کھانے کھولے جائیں گے، اور مدرسے کے غریب طلبہ کے لیے معاوضہ مقرر کیا جائے گا۔ یہ سن کر ساتھ میں کھڑے آپ کے قریبی کمانڈر نے کہا، حضور، جتنا وہ خزانہ بڑا ہے اس کو حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ آج تک بھی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ اگر میں نے وہ خزانہ حاصل کر لیا تو میں اس کا ایک بھی سکہ خود خرچ نہیں کروں گا، اور نہ ہی شاہی خزانے میں لگاؤں گا، بلکہ سارے کے سارا خزانہ میں غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ یہ سن کر تمام سپاہی و کمانڈر حیران ہوئے، لیکن یہ حیرانگی ان کی پہلی مرتبہ نہیں تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایسے موقعوں پر ایسی سخاوت دکھائی ہے کہ بڑے کے بڑے بادشاہ بھی حیران ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ خیمے میں ایک چھوٹی سی برقع پوش لڑکی آئی اور اس نے نقاب اٹھا کر کہا، میں سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی ہوں۔ سلطان نے بڑی منانت اور طباق سے اس کا خیر مقدم کیا اور پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے اعزاز میں شہر بخش دیے جائیں۔ سلطان نے وہ شہر بغیر کچھ سوچے سمجھے نور الدین زنگی کی صاحبزادی کے حوالے کر دیا، جس میں اس نے جان پر کھیل کر صبر آزما محاصرے کے بعد فتح کیا تھا۔ سخاوت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی رگوں میں بسی ہوئی تھی۔ اور دوسری ایک دفعہ واقعہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ میرا شاہی خزانہ سونے سے بھر چکا ہے تو آپ نے اپنے خزانچی سے کہا کہ یہ خزانہ ان سپاہیوں، وزیروں اور مشیروں میں بانٹ دو جو کہ سلطنت کی ترقی کے لیے ہر وقت جنہوں نے اپنا سکون برباد کر رکھا ہے۔
खजांची ने खजाने का मुंह खोला तो एक मुट्ठी भरते हुए उसने कहा कि मुझे एक ऐसी बात याद आई जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुल्तान ने कहा कि बताओ कौन सी बात है। उसने कहा कि एक दफ़ा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी इसी तरह उन्होंने किया था कि ख़जाना भर गया उनका, तो उन्होंने कहा कि तुम गरीबों में बांट दो। जब मैंने पहली मुट्ठी भरी तो सुल्तान ने कहा कि अगर तुमने इसी तरह मुट्ठियाँ भर के ही बांटना है तो तुम सबको ना दो, चंद एक को दे दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ने कहा कि ख़जाना वो है जो गरीबों के काम आए। तुम एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से मुट्ठी भर भर के वज़ीरों, मशीरों, गरीबों और तमाम मजलूमों में बांट दो और इंशाल्लाह ख़जाना चंद ही दिनों के बाद फिर से बढ़ जाएगा। दोस्तों, थी सुल्तान की सखावत अलगर्ज। अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। सुल्तान खामोशी से अपने कमरे के अंदर चला गया और जाकर अपने करीबी जासूस को बुलाया। कहा कि मुझे इस खजाने के बारे में मुकम्मल तफसील चाहिए। बताओ कि वो खजाना क्यों छुपाया गया है, कौन इसका मालिक है और वो हासिल करने के लिए क्यों कत्ल कर देते हैं। खोजी ने बताया कि हुजूर, हमारी कई सालों की मेहनत के बावजूद और बहुत से खतरात झेलने के बाद पता चला कि वो खजाना आज से कई सदियों पहले किसी बादशाह ने इस घने जंगल के बीच इस गड्ढे में छुपाया था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि वहाँ एक कबीला आबाद हो गया जो कि बिल्कुल हमारी दुनिया से ही हटकर है। वो कबीला बिल्कुल जंगली कबीला है। लोगों का रहन सहन सब कुछ मुख्तलिफ है हमसे और वो बहुत ही खूनी लोग हैं। सुल्तान ने कहा फिर वो खजाने का क्या करेंगे। तो उसने कहा हुजूर, वो इस गड्ढे को अपना खुदा का घर समझते हैं, जिसकी वजह से वो इस गड्ढे में छुपे हुए खजाने के गिर्द किसी को जाने तक की इजाज़त नहीं देते। सुल्तान ने कहा फिर इनको हराना मुश्किल क्यों है। तो खोजी ने कहा हुजूर, वो इस तरीके से इस खजाने तक पहुंचने वालों पर हमला करते हैं कि खजाने तक पहुंचते पहुंचते जो भी कमांडर जाता है इसके सारे सिपाही मारे जाते हैं और इस खजाने के घड़े पर मौजूद कमांडरों को भी काट देते हैं। और ये लोग खुद इस खजाने से अय्याशियाँ करते हैं, गरीबों की बेटियों से जनाकारी करते हैं। शराब इनकी घुट्टी में बसी हुई है। हम समझते हैं कि अगर हम ये ख़जाना फतह कर लेंगे तो हम इन सब को इबरत तक पहुंचा सकते हैं और इनकी अय्याशियों को भी ख़त्म कर सकते हैं, जिससे लोगों की माएँ बहनें तो महफूज हो जाएंगी। लेकिन ये लोग बहुत ज़ालिम हैं। इनके इस डर की वजह से ही तो अब इस ख़जाने पर हमला करने की कोई भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि अक्सर कमांडरों और बादशाहों की लाशें तक भी नहीं मिली, ये तो इन लाशों को भी खा जाते हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किसी सोच में पड़ गए और अली बिन सफियान को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूँ जिससे हम इस ख़जाने को भी हासिल कर लेंगे और इस कबीले वालों को भी खूब सबक सिखा सकते हैं। अली बिन सफियान बड़ा हैरान हुआ कि आखिर हुजूर इतने बड़े कबीले को, जो कि इतने चालाक और जंगल की एक एक चीज़ को, एक एक रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं, हम इस नए जंगल में किस तरह इनको हराएंगे। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान को कहा कि तुम रात की तारीकी में जाओ, जब वो कबाइल वाले सारे सो जाएं तो मुख्तलिफ जगहों पर सिपाहियों के मुजस्मे खड़े कर दो और जब हम वहाँ इस खजाने को तलाश करने के लिए पहुँचेंगे तो इन मुजस्मों को इंसान समझकर इनके गले काटेंगे और जैसे ही वो इनके गले काटने के लिए इन मुजस्मों की तरफ बढ़ेंगे, इन्हीं मुजस्मों के नीचे झाड़ियों और दरख्तों के पत्तों में छुपे सिपाही उठकर इनकी ही गर्दनें उड़ा देंगे और आस्ता आस्ता हम इस खजाने की तरफ बढ़ते जाएंगे और ख़जाने के दहाने पर हमारी इन कबाइल वालों से जंग होगी और इंशाअल्लाह हमें अपने सिपाहियों पर पूरा यकीन है और अल्लाह ताला की मदद नुसरत हमारे साथ होगी और इंशाअल्लाह ताला हम इनका ख़ात्मा कर देंगे। अली बिन सफियान ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद सिपाहियों के मुजस्मे इस जंगल में मुख्तलिफ जगहों पर खड़े कर दिया और इन मुजस्मों के साथ झाड़ियों में अपने एक एक सिपाही को छुपा दिया। सुबह के वक्त जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास सिपाही और सुल्तान इस जंगल में दाखिल हुआ तो सुल्तान की तरकीब के मुताबिक जैसे कबाइल वाले इस मुजस्मे को देखते तो पीछे से जाकर वार करते और इनका
गला काटने की कोशिश करते। इतने में सुल्तान के सिपाही जो कि झाड़ियों में छुपे होते उठकर इनको कत्ल कर देते और किसी को कानो कान खबर भी न होती। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी करता करता इस घड़े के दहाने पर पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे सिपाही मौजूद थे और इनके कबीले का सरदार भी वहाँ मौजूद था, जो कि शक्ल से बहुत ही भयानक लगता था क्योंकि ये इस दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सुल्तान ने इसे कहा कि तुम हमें यहाँ से खजाने लेकर जाने दो, तुम हमें यहाँ से खजाना लेकर जाने दो, हम तुम्हारे खुदा के घर को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ खजाना निकाल कर चले जाएंगे। लेकिन अगर तुमने आने से मजम्मत की तो हम तुम्हारे इन सिपाहियों की तरह तुम्हारी गर्दनें भी काट देंगे और खजाना भी ले जाएंगे। इनके सरदार ने कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे सुल्तान, आज मैं तुझे तेरा खुदा याद कराऊंगा और सुल्तान तेरी लाश के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरे सारे सिपाही समेटते समेटते थक जाएंगे। मैदान में आएगा तो तुझे लग पता जाएगा, और अगर आज अपने खुदा को भी साथ मिला लेगा ना तो मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज पता लगेगा कि किसने अपनी माँ का कितना दूध पिया और वफा किया। अरे सुल्तान, तू मेरा एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने सिपाहियों को लेकर भाग जा यहाँ से। फिर उसने कहा कि हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन अपने खुदा के घर को कुछ नहीं होने देंगे। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन पर हमला कर दो। इसी तरह जंग शुरू होगी और काफ़ी देर तक ये दोनों ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था लड़ते रहे। ये लोग इंतहाई महारत से लड़ना जानते थे और तलवारबाजी भी काफ़ी महारत रखते थे, लेकिन मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद थी। ये गुमसान की जंग काफ़ी देर तक जारी रही, लेकिन इसके बाद में भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के तमाम सिपाहियों ने इन तमाम कबाइल वालों के सर काट दिए। और इसके बाद सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि यहाँ से ख़जाना निकालना शुरू कर दो। और यूरोपी मोरखलीन पाल कहते हैं कि सुल्तान के सिपाहियों को 4 दिन मुसलसल इस ख़जाने को महल तक ले जाने का वक्त लगा। और इसके बाद सुल्तान ने इन तमाम ख़जाने को जब देखा तो मिस्र के ख़जाने से कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा था। लेकिन सखावत की बात यह थी कि सुल्तान ने वो तमाम ख़जाना गरीबों में बांट दिया और इसका एक सिक्का भी शाही ख़जाने में नहीं लगाया। और जिन जंगजुओं से जंग जीत कर यह ख़जाना हासिल किया गया उनकी बीवियों बेटियों को भी सरकारी ख़जाने से मुआवजे के तौर पर काफ़ी रकम मुहैया की गई। इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी से इस ख़जाने को हासिल कर लिया और इस ख़जाने से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र के बहुत सारे ऐसे चूल्हे जला दिए जो कि गुर्बत की वजह से बुझे रहते थे। और इसी तरह सुल्तान ने अपनी अक्लबंदी और सारे इलाके पर भी कब्जा कर लिया। जब सुल्तान ढेरों ख़जाना लेकर वापस पहुंचा तो इन खोजुओं ने सुल्तान से कहा कि आपने इतने ज़ालिम लोगों से ये ख़जाना कैसे हासिल कर लिया? हम तो सोच रहे थे कि खुदा न खास्ता आज आपकी लाश मेरे मुंह में खाक। सुल्तान ने कहा कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, हमने तो बस अल्लाह का नाम लेकर कोशिश की और अल्लाह ने हमें फ़तह याब किया।